Hanji dear students, today we are going to study about your subject microbiology and it's an introductory lecture. Okay, so your subject name is microbiology and microbiology means study of microorganisms, and microorganisms are those organisms which we can't see with the naked eye but they are living in nature, and if we want to see them we need a microscope. ठीक है, and study of microscope is microscopy. बहुत similar terms ने, but अगर तुम एक बार ध्यान नाल सुनोगे then थानू easily remember हो जाएगा. Microbiology is a subject in which we are going to study about microorganisms, and microorganisms are living organisms which we can't see with the naked eye but we see them with the help of instrument which is named as microscope, and the study of microscope is microscopy. ठीक है, it's a technique. Microbiology ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ. ਮਾਈਕਰੋਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ जो है वो हो सकता है कोई बैक्टीरिया, यीस्ट हो सकती है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, राइट. एंड मोस्ट कॉमन जो है डेली लाइफ के विच असी डेली यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ नेम्ड एज लैक्टो ਬੈਸਿਲਸ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਟੈਲਿਕਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟੈਲਿਕਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਆਫਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟੇਢਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ. ठीक है, जिमें हुण मैं अगर मैं एप्पल लिखना ये नॉर्मल है, अगर इटैलिक्स की गल करा दैन इदा लिखा जाता है. सी द डिफरेंस. सो जो असीं लिखण लगते हैं दैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम ने डिफरेंशिएट करना ईजी नहीं होता. दैट्स वाई एक नॉर्म बनाया है कि हमेशा लैक्टोबैसिलस मीनस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम लिख के उसको अंडरलाइन किया जाता. अगर तुसीं अंडरलाइन नहीं किया तो उसको एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम कंसीडर नहीं किया जाता एंड यू विल नॉट स्कोर मार्क्स. ठीक है, सो ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਔਰ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ. ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਵੈਲਫੇਅਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਨੀਮਲਸ, ਪਲਾਂਟਸ, ਨੇਚਰ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ, ਐਨੀਮਲਸ, ਪਲਾਂਟਸ, ਨੇਚਰ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੇ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਮ ਅੰਡਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ. ਐਂਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ 4 ਕਲਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰੈਡ ਕਲਰ, ਵਾਈਟ, ਬਲੂ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਣੇ ਆ. ਦੇਖੋ ਰੈਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ medicine, white related to milk and milk products, blue is related to water or marine life. ठीक है, green is related to agriculture. ठीक है, सो ये सारियां 4 डिफरेंट जो फील्ड्स ने दे आर
डायरैक्टली और इनडायरैक्टली रिलेटेड टू बायोटैक्नोलॉजी एंड बायोटैक्नोलॉजी का एक मेजर सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। वाई इज़ इट मेजर? बिकॉज ये काफ़ी सारे अगे फर्दर सब्जेक्ट्स इन्ना रिलेटेड होंगे, जिमें BP हो गया, BP स्टैंड्स फॉर बायो प्रोसैस डेवलपमेंट, फंडामेंट्स ऑफ बायो प्रोसैस डेवलपमेंट है, फर्मेंटेशन है ना। किद्दां देखो, अगर मैं गल करा जिमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नूं, जिवें असीं सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, सो इत्थे आ गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नूं अगर मैं सिंपल क्लासिफिकेशन करा दैन मैं 2 वर्ड्स यूज़ करूँगी, गुड एंड बैड। दिस इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वैसे तुसीं ग्रैजुएशन करके आए हो दैन यू नो कि काफ़ी सारी चीज़ां इदां दी होंदियां साडी पढ़ाई जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लई होंदी है, नॉट फॉर रिटन पर्पज, है ना। तुसीं सब्जेक्ट फस्ट टाइम पढ़ रहे हो, दैट्स वाई मैं जस्ट तुहानूं थोड़ा इंटरस्ट क्रिएट करने लई, थोड़ा ईजी करने लई तुहानूं 2 टर्म्स यूज़ करदी है। वैसे इन जनरल अगर तुहानूं एग्जाम पेपर च आ जाए कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैन ठीक है तुसीं लिखोगे दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विद द नेक्ड आई एंड वी नीड इंस्ट्रूमेंट to see them which is named as microscope, right? But you don't need to, and again aa gaya for example ki classify microorganism, then you don't need to write here good or bad microorganisms, good or bad bacteria. But if you really want to understand this concept, then you need to know what are good or what are bad microorganisms, ठीक है। now good means beneficial, जो साडे लिए बेनीफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। बेनीफिशियल किवें हो गए, देखो हुण मैं तुहानूं कहा कि तुसीं डेली बेसिस ते लैक्टोबैसिलस यूज़ करते हो। लैक्टोबैसिलस की है? बैक्टीरिया है, मीनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कर्ड विच प्रेजेंट होंदी है। मिल्क दे नाल जदों लैक्टोबैसिलस कंबाइन करता है दैन वो मिल्क नूं लैक्टोबैसिलस जिहड़ा है वो कर्ड दे विच कन्वर्ट कर दिंदा है। इस तो बिना जिन्ने भी फॉर एग्जाम्पल मोस्ट बेसिकली जिवें साउथ इंडियन फूड्स है, साउथ इंडियन फूड्स होंदे आ जिहड़े, जिवें इडली हो गई, ढोकला, वड़ा, ठीक है, जलेबियाँ हो गई, ये सारे जिन्ने भी ने दीज आर फरमेंटेड फूड आइटम्स ने सारियां। ये फरमेंटेड फूड आइटम्स जिहड़ियां है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैल्प नाल ही मिलदियां। देखो किते लिखिया हो सकता है वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट, किते लिखिया हो सकता है माइक्रोब्स, ये भी यही चीज़ है, ठीक है। किते लिखिया हो सकता है M.O's, M स्मॉल फॉर्म दे विच भी लिखिया हो सकता, बट तुसीं जो पेपर वगैरह लिखना दैन वो नो डाउट तुसीं फुल फॉर्म ही लिखोगे, बट इन जनरल तुहानूं वर्ड्स मिल सकते हैं। पढ़ाने भी टीचर्स बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, ठीक है, दीज आर सिमिलर, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दी प्रेजेंस दे विच सिंपल फूड नूं फरमेंटेड फूड आइटम्स दे विच कन्वर्ट किया जाता है, एंड ये सारियां एक अच्छी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दियां एक तरह ना एग्जाम्पल्स ने। इस तो बिना एंटीबायोटिक्स जिन्नियां आंदियां, जिवें पेंसिलिन है, तुसी बहुत बार मे भी यूज़ भी की होवे, नाम भी सुनिया होगा। पेंसिलिन माइक्रो एंटीबायोटिक है, ये भी एक फरमेंटेड प्रोडक्ट है जिहड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैल्प नाल बनता है। इस तो बिना एल्कोहलिक बीवरेजिज, एल्कोहलिक बेवरेजिज जिवें बीयर है, वाइन है, सारियां वोडका, रम, जिन, विस्की एटसैक्ट्रा सब कुछ फरमेंटेड प्रोडक्ट्स ने। फरमेंटेड का की मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, तुसी उसनों किसी बेस के नाल इंटरैक्ट कराया, उस तो बाद जिहड़ा वो बेस सी इट, जिवें अगर आपां जलेबियां की गल करिए बेस होएगा, जिवें ब्रैड है मोस्ट कॉमनली ब्रैड की चलो एग्जाम्पल ले लेंदे आ, असीं की लैंदे आ मैदा, ठीक है, आटा लिया, उस दे विच असीं खमीर पाउंदे आ। खमीर क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, इट्स अ यीस्ट, इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। असीं खमीर नाल जिहड़ा मैदा है उसनूं डील करवाया, ठीक है, उसनूं ओवरनाइट रखिया, दैन जिहड़ा मैदा है वो फुल जाता है, ठीक है, क्योंकि उत्थे गैसिज अकामूलेट करता है, ठीक है। गैसिज अकामूलेट होने नाल साडा जिहड़ा डो है, जिहड़ा आटा हुंदा वो फुल जाता है। जदों असीं इसकी बेकिंग करते हैं दैन वो ब्रैड बन जाती है, ठीक है।
सो असी की किया, असी एक बेस लिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए एंड जो बेस सी वो एक सिंपल या एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड से असी उसनों एक न्यू टाइप ऑफ फूड दे विच चेंज करता, कन्वर्ट करता। क्यों? क्योंकि वी नीड अ वराइटी ऑफ फूड, ठीक है, सानू अलग अलग तरह का फूड चाहिए। सो ये की हो गया, एक यूज़ हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रोबायोलॉजी सबजैक्ट का यूज़ हो गया, जिसका जो फरदर फॉर्मेंटेशन के थ्रू सानू एक बेनीफिट दिता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। इट मीनस वाई वी आर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी, राइट। सो नैक्सट ऑन द बैड, हुण देखो किसी नूं टाइफाइड हुंदा है, तुहाडे आले दुआले या तुहाडे फैमिली मैंबर या मे बी तुहानूं कदी होया होवे। टाइफाइड इज़ अ डिजीज़ जो एक पैथोजैनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके हुई है, ठीक है। इन जनरल अगर आप एग्जाम्पल लेके, मदर्स ऑलवेज से अपने बच्चों को हमेशा कहनी है कि स्ट्रीट फूड नहीं खाना, स्ट्रीट फूड नहीं खाना। मम्मा हमेशा बोलती हैं स्ट्रीट फूड की है जो सड़क पर मिलता है, ठीक है, स्टॉल्स के उत्ते। उत्थे की हुंदा, सारा दिन ट्रांसपोर्टेशन हुंदी है, धूड़ मिट्टी ये वो सब कुछ उड़ के उस फूड पर गिरता है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर लिविंग इन नेचर, उन्होंने असी देख नहीं सकते, बट उनका सोर्स की है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर च हुंदे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर च हुंदे हैं, सॉइल च हुंदे हैं, ठीक है। 3 मेजर सोर्सिज हैं। हवा दे विच हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, पानी च हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम होंगे, सॉइल च हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। बट इट देयर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड्स, ठीक है। कितनी पोल्यूटेड हवा है उसके अकॉर्डिंगली टाइप और वराइटी एंड की कहने कंसनट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगी। सेम हाउ और हाउ मच पोल्यूटेड वाटर है, ठीक है, कितनी पोल्यूटेड सॉयल है, किस एरिया की सॉयल है, वैदर कंडीशनस की ने, ये सब चीज़ां डिपेंड करती है उन्होंने अमाउंट के उत्ते एंड टाइप के उत्ते, ठीक है। हाउ इट डिपेंड्स कि वैदर ते किमें डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया ते किस तरह डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा अगे अगे जिमें जिमें तुम सब्जैक्ट पढ़ोगे थोड़ा होर ज़्यादा क्लीयर हो जाएगी, ठीक है। सो जिवें हुण मैं टाइफाइड की एग्जाम्पल ली कि स्ट्रीट फूड है, मम्मा कहते कि नहीं खाना, क्यों खाना? क्योंकि इत्थों डस्ट उड़ी फूड उत्ते गिरी, ठीक है, उत्थे काफ़ी सारे डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हो, तुसीं फूड लैने हो दैन तुहानूं अंदर फूड बॉडी जिहड़ी है तुहाडे उत्थे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्यों होंदी है? ड्यू टू बैड और पैथोजैनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हुण जे असी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बारे ना पढ़िए, माइक्रोबायोलॉजी सबजैक्ट ना पढ़िए, दैन हाउ वी कैन डिफरेंशिएट टाइफॉइड डिजीज़ अमंग अनदर डिजीज़। क्योंकि जो साडी बॉडी दे विच डिजीज़ होंदियां, हुण एड्स हुंदा है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, टाइफॉइड है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, उस तो बिना थोड़ा कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप दी डिजीज़ हैं। हर एक दे डिफरेंट टाइप की डिजीज़ दे डिफरेंट सोर्सिस ने, बट बहुत सारिया बीमारियां एवें दियां ने जिन्हां दा सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अगर सानू बेस पता होएगा कि किस माइक्रो ऑर्गेनिजम करके किहड़ी बीमारी हो सकती है, ठीक है, दैन तां ही असीं कुछ कर सकते हैं। देखो कितनी चीज़ां आंदियां, फस्ट आ गया डिजीज़ की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल तुसीं मान लो टाइफॉइड है, ठीक है, हुण ये बीमारी होने का एक सोर्स होएगा जिस तो यह डिजीज़ हुई, किस तो हुई? माइक्रो ऑर्गेनिजम तो, ठीक है, जो पैथोजैनिक इन नेचर सी, पैथोजैनिक इन नेचर, ठीक है। बीमारी है बट सब तो पहला की है कि एक सोर्स सी माइक्रो ऑर्गेनिजम जो पैथोजैनिक इन नेचर है, जिसके कॉन्टैक्ट ह्यूमन बीइंग आया, उस ह्यूमन बीइंग दे इस माइक्रो ऑर्गेनिजम च कॉन्टैक्ट आउण नाल मे बी उसका जिहड़ा इम्यून सिस्टम सी वीक सी परसन दा, ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दे विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टैक्ट च आ गया एंड उस ह्यूमन बीइंग नू ड्यू टू दिस सोर्स इस ह्यूमन बीइंग नू यह बीमारी होगी, ठीक है ना। हुण यह बीमारी तो होगी, बीमारी ने की होया जो डिजीज़ होगी साडी बॉडी ने सिम्पटम्स दिते। हुण डिपेंड करता, कुछ फूड पॉइजनिंग्स दे विच सानू वॉमिटिंग्स आंदियां, ठीक है, सानू डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, दैन
पेट अपसैट हो सकता है, लूज मोशनस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, पहला देखो अननोन है, ह्यूमन बींग है, मे बी उसका इम्यून सिस्टम वीक सी, और किसी भी रीजन करके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सोर्स ऑफ डिजीज सीगा उसके कॉन्टैक्ट 'ਚ आ गया, उसकी बॉडी ने सिम्पटम्स देने स्टार्ट किए, है ना। नाउ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डिजीज इट इज़, ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਏਗੀ। ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬਾਕੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਔਰ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਈਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਕਨਕਲੂਡ किस टाइप की डिजीज़ है, केड़ी डिजीज़ है, सवीयर डिजीज़ है, नॉर्मल डिजीज़ है, नॉर्मल फूड पॉइजनिंग हुई है या टाइफाइड हो गया पर्सन को, उस तो बाद तुसी उस चीज़ का ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, लॉन्ग प्रोसैस हो गया। एक अननोन ह्यूमन बींग सीगा, अननोन रीजनस करके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट 'ਚ आ गया, मे बी दैट टाइम उसका इम्यून सिस्टम वीक सी एंड उसकी बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्ड किया, कुछ सिम्पटम्स दिते, मे बी इट्स अ स्टमक पेन, डायरिया, वॉमिटिंग्स, लूज मोशन, इट डिपेंड्स। ठीक है, उस तो बाद फिर असी डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने सानू टैसट लिखे, साडा डायगनोस किया गया। डायगनोस के स्टैप्स ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े हो सकते हैं, मे बी स्ट्रेनिंग हो सकती है, कोई भी डिफरेंट मैथड यूज़ हो सकता है। ठीक है, दैन वो मैथड ਨੂੰ यूज़ करन तो बाद फिर सानू पता चलिया सानू किहड़ी बीमारी हुई है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बीमारी हुई है, एंड फिर उसका ट्रीटमेंट होएगा। ठीक है, सो आई थिंक इट्स अ मेजर और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट वाई वी आर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट इन योर कोर्स। ठीक है, मीनस बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक रीजन है कि असी वैलफेयर लिए वर्क करना है। डिफरेंट टैक्नीक्स हो सकती हैं, डिफरेंट मैथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जिसनों यूज़ करके असी ह्यूमनस का या एनिमल्स का या प्लांट्स का या नेचर का बैनीफिट करना है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी। एंड हुण तुहानूं समझ आ गया होगा कि असी माइक्रोबायोलॉजी सबजैक्ट पढ़िया, दैन असी ह्यूमनस का बैनीफिट कर रहे हैं। ठीक है, उस तो बिना जिमें हुण लेटेस्ट जो चल रहा पीरीयड कोविड-19 का, राइट, कोविड-19 के जिन्हें भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वो मेजर वर्क रोल प्ले कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं कि किस किस की कहने होने एनवायरमेंटल कंडीशनस दे विच कोविड-19 जोड़ा है वो सर्वाइव कर रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट उहदे लई हो सकता है, ये सारा कुछ सैकेंडरी हो गया। राइट, उस तो बिना जिमें हुण गुड बैक्टीरियाज दे विच की हो गया, हुण तुसी ऑलरेडी इंडियन फूड दे विच कितनी ज़्यादा वैरायटी है, जो फरमेंटेड फूड खा रहे हो तुसी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दी एक तरह नाल ब्लैसिंग है तुहाडे लई। एंड उस तो बिना होर न्यू फूड्स भी मे बी इन फ्यूचर इन्वेंट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू नो डिमांड की है इन फ्यूचर लोगों की। ठीक है, प्लस टेस्ट की प्रैफर कर रही है आने वाली जनरेशन, उसके अकॉर्डिंग होर ज़्यादा मॉडिफिकेशनस भी हो सकती हैं, अल्कोहलिक बीवरेजेस मिल रही हैं एंड मैडिसिन। ठीक है, तो देखो मैं तुहानूं रैड बोलिया सी, मैडिसिन दे विच की हो रहा, असी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं विद द हैल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाइट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, असी मिल्क प्रोडक्ट्स जिमें मिल्क है उसनूं कर्ड कन्वर्ट करता माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैल्प लई। मैराइन लाइफ जो वाटर एंड एक्वेटिक लाइफ होंदी है, उत्थे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिन्होंने असीं अगे फ्यूचर दे विच यूज़ कर सकते हैं। जिहड़ा पानी है, सी दा वाटर है, उसनूं पोल्यूशन कंट्रोल करन दे लई। ठीक है, थर्ड फोर्थ इज़ एग्रीकल्चर। आई होप थानू समझ आ गया होएगा राजे। अगर कोई क्वेरी होई, कुछ डाउट होया, तुसीं मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।